Welcome to Insight SSB, an initiative by 5 times recommended and All India ranked 26 CDS2 2018. Don't forget to subscribe and click on notification bell to get updated whenever we post. Also download Insight SSB app for various courses. So our first question is, what is the name of the first automated testing machine procured by the Government of India for testing COVID-19 cases? तो हमसे ये पूछा गया है कि पहली फर्स्ट ऑटोमेटेड कौन सी टेस्टिंग मशीन है जो कि कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर करी है. इसके ऑप्शन है ए CDC 6800, बी कोविड 6800, सी कोबास 6800 एंड डी NCDC 6800. सो इसका करेक्ट आंसर है कोबास 6800. एक्चुअली ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन है जो कि परफॉर्म करती है रियल टाइम PCR टेस्टिंग फॉर कोविड-19 पेशेंट्स. दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी टेस्टिंग मशीन जो कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को, हमारी कंट्री की टेस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है. सो वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द टेस्टिंग मशीन, दैट इज कोबास 6800. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, Avni Chaturvedi, Bhavna Kant and Mohana Singh Jitarwal, who recently received the Nari Shakti Puraskar award, has associated with which profession? तो ये तीनों अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत एंड मोहना सिंह जितरवाल, इनको रिसेंटली नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये किस प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं. आर ऑप्शंस आर naval captains, fighter pilots, sports person and army officers. So the correct answer is fighter pilots. Recently on International Women's Day, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन्हें प्रेजेंट किया है नारी शक्ति पुरस्कार और ये इंडियन एयर फोर्स की फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बनी है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रिमेंबर. इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट जो हैं वो हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत एंड मोहना सिंह, और इसी अचीवमेंट की वजह से इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे. दीज थ्री were the first to be inducted into the squadron and conduct a solo flight in MiG-21 in 2018. So we have to remember each and every detail regarding them. This is a very important thing. नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत एंड मोहना सिंह को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की विमेन फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने 2018 में MiG-21 को फ्लाई किया था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, मीराबाई चानू and Jeremy Lerunga, who is in news recently, belongs to which sports? Our options are A weightlifting, B boxing, C wrestling, D shooting. So the answer is A weightlifting. Both of them, Mirabai Chanu and Jeremy, is involved in the sports weightlifting. Mirabai Chanu plays in the category of 49 kg and Jeremy plays in the category of 67 kg, and Chanu has the rank 8 and Jeremy has the rank 2nd in IWF, that is Indian Weightlifting Federation. The next question is, which venue was originally scheduled for the 7th G7 Summit 2020 that has been postponed due to COVID-19 pandemic? So we have to tell that which country was supposed to host the G7 Summit 2020. Our options are A France, B US, C Germany, D Italy. The answer is B US. The 7th G7 Summit 2020 was supposed to be organized by US, which is being postponed due to COVID-19 situation. So G7
Actually, it is an association of 7 of world's largest economies. G7 में 7 हमारे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं. ये 7 कौन कौन सी कंट्री हैं? ये 7 कंट्रीज़ हैं यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान. ये मीटिंग जो 7th है, ये 7th G7 समिट 2020 जून में होने वाली थी, बट ये कोविड-19 सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन हो गई. और ये इस साल इसीलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने इस बार G11 प्रपोज किया था. G11 इंक्लूड्स 7 countries which are already part of G7 plus 4 more countries. And who are these 4 more countries? The 4 more countries are India, Australia, South Korea and Russia. So India भी इसका पार्ट होने वाला था, इसीलिए ये हमारे लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो हमें याद करना है कि G7 समिट 2020 की कहाँ होनी थी? वो होनी थी यूएस में. The next question is, which 5-time Grand Slam champion recently announced her retirement from tennis at the age of 32? Our options are Maria Sharapova, B. Carolina Wozniak, C. Serena Williams and D. Venus Williams. And the answer is A. Maria Sharapova. Maria Sharapova is an Olympic medalist as well as winner of 5 Grand Slam titles. She is Russian tennis player और उन्होंने recently 32 की एज में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है इसी साल. सो इसीलिए दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशनल पार्क बिकेम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर फॉर एनिमल्स? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन सा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर बना एनिमल्स के लिए? ऑप्शंस आर ए. बांदीपुर नेशनल पार्क, बी. चंडोली नेशनल पार्क, सी. दचिगम नेशनल पार्क एंड डी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो इसका सही आंसर है डी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक्चुअली लोकेटेड है उत्तराखंड में एंड बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका. चंडोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड दचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. द लोकेशन ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, बट हियर द क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क बिकेम इंडियाज फर्स्ट क्वारंटीन सेंटर फॉर एनिमल्स, और इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड में. Next question is, Chakhao, a variety of black rice that recently bagged GI tag, geographical indication tag, is found in which state? तो हमें पूछा गया है चखाओ जो कि एक राइस की वेराइटी है, ब्लैक राइस की वेराइटी है, वो किस स्टेट में बिलोंग करता है? ऑप्शंस आर ए. असम, बी. मणिपुर, सी. सिक्किम एंड डी. अरुणाचल प्रदेश. तो इसका आंसर है बी. मणिपुर. मणिपुर स्टेट से ये जो राइस की वैरायटी है ये बिलोंग करती है. ये एक एरोमेटिक ग्लूटिनस राइस है और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेडिशनल है और फेमस है, और यही रीज़न है कि इसको इस साल GI टैग दिया गया है. तो हमें ये याद करना है दैट चखाओ बिलोंग्स टू मणिपुर. Next question is, what is the theme of the Earth Day 2020 which is also 50th anniversary of the day? तो हमसे पूछा गया है कि अर्थ डे जो इस साल 2020 को, जो कि यूजुअली 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? आर ऑप्शंस आर ए. आर अर्थ आर लाइफ, बी. क्लाइमेट एक्शन, सी. गोल्डन अर्थ एंड डी. अर्थ एट 50. तो इसका सही आंसर है बी. क्लाइमेट एक्शन. और ये इस साल इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल अर्थ डे की 50th एनिवर्सरी थी. एक्चुअली द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे स्टार्टेड इन 1970. तो इसीलिए अर्थ डे इस साल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम्स नेम्ड PLI, SPECS, SPECS, EMC 2.0? तो हमें इसमें बताना है कि ये जो तीनों स्कीम्स हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है. ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME. इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT.
एक्चुअली ये 3 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं टू बूस्ट आर मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द कंट्री। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करने की, उसको बूस्ट करने के लिए ये तीनों स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आई रिपीट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। SPECS stands for Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Component and Semiconductors. And AMC 2.0 stands for Modified Electronics Manufacturing Clusters. तो तीनों का ऑलमोस्ट, ये जो तीनों स्कीम्स हैं तीनों का सेम ही पर्पस है, सेम ही उनका जो मोटो है वो है, और एक ही मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. The next question is, name the new initiative recently launched by Government of India to conduct a skill mapping exercise of Indian citizens returning from overseas under the Vande Bharat mission. तो हमसे उस स्कीम का नाम पूछा गया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, जिसमें कि स्किल मैपिंग एक्सरसाइज करनी है इंडियन सिटीजन्स की जो बाहर से अपने देश वापस आ रहे हैं अंडर वंदे भारत मिशन। हमारे ऑप्शंस हैं A प्रवासिया, B प्रदेश, C स्वदेश एंड D सम्मान। तो इसका सही आंसर है C स्वदेश। स्वदेश इज एक्चुअली एन इनिशिएटिव इन विच पहले तो डाटाबेस क्रिएट करा जाएगा इंडियंस का जो कि बाहर से आ रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस उनका डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा एंड वो डाटाबेस देन यूज किया जाएगा बाय फॉरेन एज वेल एज इंडियन कंपनीज के थ्रू उनकी नीड्स फुलफिल करने के लिए। तो वंदे भारत मिशन के अंडर ही ये इनिशिएटिव आ रहा है विच इज बीइंग नेम एज स्वदेश। The next question is, Niti Aayog has selected which union territory for first pilot project on SDG, that is Sustainable Development Goal. हमारे ऑप्शन है गोवा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी नीति आयोग के द्वारा सिलेक्ट की गई है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसमें काम करेगी। तो इसका सही आंसर है C जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर नीति आयोग के थ्रू सिलेक्ट किया गया है। ये इसीलिए सिलेक्ट किया गया है सो दैट इट गेट्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद UNDP। UNDP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो ताकि ये UNDP के साथ काम करने की इसको अपॉर्चुनिटी मिल सके, एज वेल एज इसमें जो डेवलपमेंट है वो increase हो सके in this particular union territory. So it is being done by Niti Aayog. The union territory is Jammu and Kashmir and it is working on SDG collectively.